early in the morning where I'm shooting and मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगी है. Okay. Hi guys. So this video is with another story time. मतलब टाइम मशीन में लेके जाने वाली हूँ कि 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था. आज 5 साल लगे मुझे, 5 साल वीडियो बनाने के लिए. You know I can be like 5 साल के बाद मैंने कुछ अचीव किया है. I can tell to myself that look how I was 5 years ago and how I am after 5 years. हाँ, बकवास सब साइड में रखते हैं. So let me just begin. So 2020 is when I passed my 12th and that means I completed my 12th and that was the time when I was सारे बच्चे जो 12th में थे अपने कॉलेजेस देख रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक भी कर रहे हैं एंड टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं. So मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ ना. So different in the sense I scored good marks, okay, but the course which I wanted to do was completely different. मतलब hardly people must have heard. Certainly मेरी लाइफ में सब कुछ आसानी से थोड़ी हो सकता है. Everything has to be super complex and super delayed. In my life भले ही मुझे ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है मेरी जिंदगी में, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं करना है जिंदगी में. तो आई वॉज वेरी मच लाइक इन 11th ओनली कि मैं कुछ भी हो, मैं डॉक्टर नहीं बन रही. सो आई फेल्ट कि मेडिसिन इज अ कोर्स जिसमें बहुत पेशेंस लगता है. वो पेशेंस मेरे में 0 सन्नाटा है. इट्स -100. मेडिसिन के अलावा और क्या कोर्सेज हैं? बहुत सारे कोर्सेज है जो लोगों को नहीं पता होता है. पीपल आर लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये 3 होता है. नहीं, there are many courses which you guys don't know. That's your mistake भाई. अभी AI है, इंटरनेट है, तुम जाके खोजो. और मैंने वही किया. तब मैंने गूगल में इतना छान मारा क्या कोर्सेज हैं कि बाकी स्टूडेंट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन. तो मैंने लिस्ट निकाला. मैंने 3 से 4 कोर्सेज फिल्टर आउट कर लिए. उसमें से टॉप में था यू वोंट एग्री, BSc न्यूट्रिशन, BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर. ओके, तो ये फूड टेक्नोलॉजी क्या है? This seems really attractive. मतलब टर्म ही बहुत अट्रैक्टिव था. I was like fine, ये फूड टेक्नोलॉजी क्या है, let me research. तो then they were like, then मैंने टाइप किया कि फूड टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद लोगों को क्या क्या नौकरी मिलती है. Like where do you get placed, where do you work, what will be a job role. And then they were like, Google was like फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल मिलता है, you get paid really well. झूठ है but really well, etc etc. And then I'm like, okay, what all other companies? And then the companies come like Coca-Cola, Pepsi, Colgate, P&G, Hindustan Unilever. I'm like, oh wow, and I got really mesmerized. Okay, I got really mesmerized. I was like, okay, इतने सारे बड़े कंपनीज में मुझे जॉब मिलेगा. I also had agriculture. मेरा main motive था to get into agriculture because I was like, India is very much into an agri state. It's an agri land. पूरे discussion के बाद I finalized 2, food technology, agriculture. अब होता है मेरा 12th के board exams. So by the time only I started applying to colleges. Okay, then it was 2020. 2020 में क्या हुआ था? कोविड हुआ था. I had 5 subjects in my 12th. Okay, 5 subjects. And in that, bio, physics, chemistry. 1 was computers and 5th was English. मैंने English, bio, physics, chemistry सारे लिख लिए. जो मेरा सबसे easiest and most scoring subject था, which would actually increase my grade, that I did not write. That is computers. Why? Because lockdown was initiated and I'm like, डैम यार, फिजिक्स एग्जाम लास्ट नहीं हो सकता था, केमिस्ट्री एग्जाम लास्ट नहीं रख सकते थे कि जिसकी वजह से कोविड आ गया और लॉकडाउन हो गया. नहीं, मेरी किस्मत बहुत खराब है. कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ था. I had my 1 exam pending. I was hell confused कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा. Should I write this exam or no? Should I prepare for it or no? Because मेरा आधा इंटरेस्ट खो चुका था. Why? Because it's been more than 2 months and the exam is getting postponed. I was stressed. Okay, stressed to peak कि मुझे पता नहीं है कि मेरा कॉलेज मतलब एडमिशन होगा, मुझे जो कोर्स चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा. The hell is actually happening? I don't know. I had to write entrance exams. Okay, मैंने नीट लिखा है, मैंने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे हैं, मैंने एग्री का भी एंट्रेंस एग्जाम लिखा है जिसमें I got selected. Just letting you know. But there was this point which was raised by my father. Agree में you legit go to rural areas and work and you cannot be like, oh मुझे धूप लग रही है, मुझे tanning हो जाएगी. You cannot be like that. You have to be a bit strong and rigid. Are you ready for that or not? Oh, ऐसा नहीं होगा कि तुम मतलब एक corporate में, एक room में, एक desk में तुम laptop में काम कर रहे हो. ऐसा नहीं हो सकता. And he was like, no. Agree में departments होते हैं but you have to go for rural visits because agriculture है वो. Okay. ये मतलब मैं पढ़ाई कुछ और कर रही हूँ और मैं काम करने का सोच कुछ और ही रख रही हूँ. एंड आई एम लाइक नो, आई डोंट वांट दिस. एंड देन ही वाज लाइक फाइन, देन यू कैन थिंक अबाउट फूड टेक्नोलॉजी. मैंने इतना रिसर्च किया. ओके, मैंने मतलब मी एंड माय डैड वी डिड सो मच रिसर्च कि हम ये यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ये कंपनीज में होगा, फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स क्या होता है. इतना मैंने रिसर्च किया था.
by July and August, I decide my course that this is what I want to do. And like food technology, biotechnology, agriculture, bio students can also do engineering in that field. And September is going to start, September 2020, and I was screaming. Why? Because in my batch, जो मेरे batch वाले थे, they started uploading their bio with their which college they have joined. You remember I just said that BPC वाले भी बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं. मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ पे स्टेट के भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. मैं वो एंट्रेंस एग्जाम लिखती हूँ ओनली बिकॉज उस एंट्रेंस एग्जाम में ये था कि MPC वाले दैट इज PCM वाले को इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज मिलेंगे जो भी मैथ्स रिलेटेड है, एंड बायो वालों को मेडिकल के अलावा जो भी अलग कोर्सेज हैं उसमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी था, बीटेक एग्रीकल्चर था, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी था, बीटेक माइक्रोबायोलॉजी भी था. And we all were eligible for those BTech engineering courses as well, along with the math students. In 25 days, मैथ्स वालों का रिजल्ट आ जाता है, दैट इज इंजीनियरिंग वालों का रिजल्ट आ जाता है, उनका काउंसलिंग के डेट्स भी आ जाते हैं कि व्हाट सो एंड सो डेट्स तुम्हारे काउंसलिंग हैं ये लो. मेरे रिजल्ट नहीं आता है, बायो वाला को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है. आई एम लाइक ओके, रिजल्ट कब आएगा, वी वेट कम. तो अनलेस एंड अनटिल काउंसलिंग हैपेंस, हाउ विल आई नो कि मुझे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं. So I wait for counseling, but counseling का कोई notification ही नहीं आता है, and I'm like shit, no, what should we do? So my dad keeps asking me, यार counseling क्यों नहीं हो रहा? And I'm like, I don't know. I keep checking, there is no response. Then what we do is, me and my dad, we got so frustrated, so we take a trip to this one famous agricultural college head office. First में जाते हैं, we say that हम ये के लिए आए हैं, and then they take us to a big conference room, and वहाँ पर reception भी होता है, and reception में we ask them that what, we have come, we have written the exam, but counseling नहीं हो रहा है. And they're like, counseling शुरू हो चुका है. And I'm like, नहीं, counseling शुरू नहीं हुआ है, because I have checked. जो पहले काउंसलिंग हो रहा था दैट वाज फॉर फार्मेसी. देन दे वर लाइक ओके, तुम्हें कौन सा कोर्स करना है? देन आई वाज लाइक फूड टेक्नोलॉजी, एंड आई वांट टू गेट इनटू बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बट बीटेक एग्रीकल्चर भी अगर ऑप्शनल है तो आई वांट टू सिट इन दैट काउंसलिंग एज वेल. बट दे वर लाइक तुम BPC हो, एंड आई एम लाइक हाँ मैं BPC हूँ, बट आई एम एलिजिबल, राइट? व्हाई? बिकॉज जब मैं एंट्रेंस एग्जाम लिख रही थी, वो एंट्रेंस एग्जाम में क्लियरली मेंशन था कि बायो वाले बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर में भी एलिजिबल हैं. मैंने 10 बार देखा था. आई इवन शेयर्ड दिस फॉर्म विद माय फादर. आई आस्क्ड द रिसेप्शन वाला गाय दैट आई वांट टू डू बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बट यू आर नॉट एलिजिबल. एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, What do you mean by I'm not eligible? एंट्रेंस एग्जाम के मतलब जब मैं फॉर्म भर रही थी उसमें तो एलिजिबल लिखा है, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी ले रहे हैं. दे वर लाइक नो, एक्चुअली 5 साल पहले हमने ये नॉर्म निकाल दिया है, तो अभी सिर्फ मैथ्स वाले ही बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बीटेक कर सकते हैं, बायो वाले सिर्फ BSc कर सकते हैं. एंड आई एम लाइक, एंड दैट दे टोल्ड इन 2020, दैट मीन्स 2015 में ही उन्होंने नॉर्म चेंज कर दिया था कि बायो वाले बीटेक फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ BSc ही ऑप्शन है. Me and my father, we just look each other and we laugh. He was laughing out of helplessness and same as me, and he was laughing कि what the hell actually happened with me. And I'm like, मतलब ऐसा पोपट बोलता है ना उनके सामने. I was shocked and he was also shocked. He's like, you don't know. I'm like, how will I know? वेबसाइट आप अपडेट नहीं करते हो, आप अपडेट करोगे वेबसाइट तो ही हम लिखेंगे. And then I was like, Dad, who speak to them? That what nonsense are they talking? मतलब my father goes, because even he was in disbelief कि मतलब इतनी दूर आए हैं, एग्जाम पूरा लिखने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 5 साल पहले तुमने ये नॉर्म चेंज कर दिया है, तो तुमने वेबसाइट अपडेट करने का सोचा भी नहीं. बिकॉज डोंट दे नो कि कुछ बच्चे सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम्स इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उनको वो स्पेसिफिक कोर्स स्पेशली करना होता है, एंड खासकर उसमें कुछ अपडेट करना हो तो उनको करना चाहिए. But anyways, so my dad speaks and he tries his level best and he's like, no, it does not happen like that. You know what? There's no point of you fighting now. It's a waste that you have written exam. अब कोई private institutes में देखता है. And I'm like, what do you mean? I was still in disbelief, okay? मैं रहती हूँ, जिस city में रहती हूँ, food technology as a course is very rare, okay? Very rare. मतलब इक्के दुक्के colleges मिलेंगे तुम्हें. And by the way, I live in a metro city. इक्के दुक्के colleges मिलेंगे. भाई तुम 5 साल तक कर क्या रहे थे? Can't you update a freaking website that bio students are not eligible for BTech food technology? And I'm like, I was like, I just need a glass of water so that I can splash on my face so that I can at least मतलब मैं थोड़ा नींद से जागूं. And even the officials, they were also disbelieved कि ऐसे कैसे हो गया. Then I showed them कि you know what, I'm not lying, I have actually saw the entrance exam. Luckily वो website अभी भी वैसा का वैसा ही था, तभी भी वैसा का वैसा ही था. And I showed them that look, bio students are eligible, it's clearly written, it's highlighted in fact in bold letters. And they were like नहीं हमें ये अपडेट करना पड़ेगा, आप ले लो. And I'm like, okay, what about me now?
मैं क्या करूँगी? लेजिट ये सब एक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए मुझे इतना घूमना पड़ रहा था, ओके। एंड ऐसा नहीं कि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई शहर में था, वो समवेयर इन आउटस्कर्ट्स वेयर मी एंड माय डैड हैड टू ट्रैवल 1.5 hours ओनली टू गो देयर। आई जस्ट वांट टू गो स्लीप, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मतलब देयर वाज लॉट ऑफ happening in my life, there's lots happening in my life, बहुत शोर था, and I just wanted to go sleep and I was so tired. The date I still remember, 24th of November 2020. By the time 80% of my batchmates, including my friends, they had already taken admission into colleges, उनका classes शुरू हो चुका है, and I am clueless, and I just take this one wise decision that you know what, enough now, I need a break. अब कोई भी जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलेगा फूड टेक्नोलॉजी मैं कर रही हूँ, भले ही बीएससी हो बीटेक हो, मैं कर रही हूँ। अब मुझे उस भसड़ में नहीं फंसना। एंड माई डैड ही गिव मी अनदर ऑप्शन, ही वाज लाइक यू नो व्हाट वैशाली, अभी नवंबर है ना, अगर तो और 6 महीने रुक जाती तो फिर से तू एंट्रेंस एग्जाम लिख सकती है, एंड दिस टाइम यू कैन स्कोर इवन बेटर एंड यू कैन गेट इनटू मोर टॉप कॉलेज, व्हिच वाज अ फेयर इनफ topic of discussion, which I did not wanted to discuss on because I did not wanted to waste one entire year, take a drop, and then get appeared in some college and मैं course करूँ. I was losing hope every day, okay, every day. And then date आता है 26 November 2020. And then I still remember ये university, जब मैं स्कूल में थी, there was one of my friend, she told Geetam University, she was checking out the campus and I was like wow, I kind of liked it. Food technology as a course तो यूनिवर्सिटी में है, check कि ये मेरी सिटी में है या नहीं. And to my luck, it was not mentioned in the website, but when we called them in person, they were like, तुम्हारा पहला बैच है जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी इस शहर में, इस कैंपस में लॉन्च किया जा रहा है. So when I took admission, जब हुआ, it was 26 November, I still remember the day. And सब खत्म होने के बाद, one fine Sunday, I was just sitting like this and I was just recalling everything. And my dad was telling me कि तेरे एक एडमिशन के कॉलेज में इतना तूफान आया, हम इतना घूमे हैं, do you even realize? And I'm like, yeah, I realized was. So this is finally the end of the tufan which happened in this peak COVID. Meet you in the next video with more such कांड एंड whatever मसाला मिर्च तड़का वाला स्टोरी. मतलब जो भी मेरे दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं मैं बस बोल दे रही हूँ, मतलब उसका कोई मतलब अर्थ कुछ नहीं बनता है, मतलब जो भी मतलब एस्थेटिक वाले वर्ड्स लग रहे हैं मेरे दिमाग में सब मैं उगल दे रही हूँ, बस उतना ही है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगले वीडियो के लिए इंतजार करना. अंटिल देन एंजॉय माय प्रीवियस वीडियोस.